Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father, we thank you for this wonderful opportunity to come together physically to worship you. पिता हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो आपने दिया है कि हम एकत्रित आकर आपकी आराधना कर सके। Thank you, Lord, for this day. इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you for everyone who's come here today and everyone who's watching us online whenever they watch it. धन्यवाद हर एक व्यक्ति का जो आज यहाँ आया है और धन्यवाद उनके लिए जो ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं भले कभी भी देख रहे हैं। And we thank you that you're going to speak to each and every one of us today. हम धन्यवाद करते हैं कि आप हम में से हर एक से आज अब बात करेंगे। Thank you for the time of praise and worship. स्तुति आराधना के समय के लिए धन्यवाद। Give us a deeper revelation of you. आपका हमें एक गहरा प्रकाशन दीजिए। Not just about you, but you. आपके बारे में नहीं बट आप दीजिए। Because you are the bread of life. क्योंकि आप खुद जीवन की रोटी है। And our satisfaction comes from feeding on you. और हमारी तृप्ति आपके ऊपर खाने से आती है। Our nourishment comes by feeding on you. हमारा पोषण आपके ऊपर खाने से होता है। So we thank you, Father, for your great provision. हम धन्यवाद करते हैं पिता आपके महान प्रावधान के लिए। Your daily, weekly, monthly, yearly provisions for us. आपका दैनिक मासिक और पूरे सार का जो हमारे लिए प्रावधान है उसके लिए धन्यवाद। Is because of your great love towards us. ये आपकी महान प्रेम की वजह से जो हमारे प्रिय हमारे तरह है। Give us a deeper revelation of your provision and of your love. हमें आपके प्रावधान और आपके प्रेम का एक गहरा प्रकाशन दीजिए। You're ministering to each and everyone whoever has come today. आप हर एक व्यक्ति का जो आज यहाँ है आप उनकी सेवकाई टहल कर रहे हैं। You're ministering to their spirits, their soul and their bodies. आप उनके आत्मा शरीर और प्राण की सेवकाई टहल कर रहे हैं। Thank you for their edification and their perfection. धन्यवाद उनकी स्थिरता के लिए और उनकी उन्नति के लिए। We give you all the glory हम सारी महिमा आपको देते हैं in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम Amen. से। Amen। I want to welcome all of you to church. मैं आप सभी का आज कलीसिया में स्वागत करना चाहता हूँ। Let's continue our session. The first session, it's called The Father's Provision Part 3. हमारा पहला सत्र हम जारी रखेंगे जो है पिता का प्रावधान भाग 3। The Father's Provision Part 3. पिता का प्रावधान भाग 3। And so one of the things that we must know is that once we got born again, God Almighty is our Father. He is our Father God. एक चीज जो हमें जानना जरूरी है कि जब हमारा नया जन्म होता है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता बन जाता है। So we are not orphans. We have a dad. He's a loving dad. We have a Father God. तो हम अनाथ नहीं है, हमारे पास पिता है, एक प्रिय पिता है, प्रेमी पिता है और वो हमारा परमेश्वर है। And our Father, our Heavenly Father, He has provision. He has lot of resources that He has for His children. और उसके बच्चों के लिए हमारे स्वर्गीय पिता के पास बहुत सारे संसाधन और प्रावधान हैं। Maybe your earthly father doesn't have much. शायद से आपके जो शारीरिक माता पिता है उनके पास ज़्यादा नहीं होगा। And sometimes that makes a lot of people angry. और कई बार बहुत लोगों को ये बात गुस्सा दिलाती है। Because they are earthly parents, they don't have much. क्योंकि उनके जो शारीरिक माता पिता है उनके पास कुछ ज़्यादा नहीं है। But if you are a believer, you have a heavenly Father and He has so much. पर अगर आप एक विश्वासी है आपका एक स्वर्गीय पिता है और उसके पास बहुत कुछ है। And so the entire objective of teaching this is to help us live by our Father's resources. तो ये सिखाने का एकमेव उद्देश्य ये है कि हम आपको पिता के प्रावधान के अनुसार जीना सिखाएं। We must live by our Father's resources. हमें अपने पिता के प्रावधान के अनुसार जीना है। Because your own resources are very limited. क्योंकि आपके खुद के संसाधन जो है वो बहुत सीमित है। And the more you depend on your resources, the more heavier your head will be. और जितना आप आपके खुद के संसाधनों के ऊपर निर्भर करेंगे उतना ज़्यादा आपको सिर दर्द होगा।
more, it's like somebody has kept something very heavy on your head ये मानो ऐसा है किसी ने आपके सिर पर बहुत भारी चीज रख दी, because you're looking at your resources. क्योंकि आप अपने संसाधनों को देख रहे हैं। And another bill comes, और एक बिल आता है, and you know bills are unending. और आपको पता है बिल कभी खत्म नहीं होते हैं, They never end. कभी खत्म नहीं होते। Expenses, we have new expenses. खर्चे हमारे हर दिन नए नए खर्चे होते And हैं। so the more you're looking at your resources, the more it feels like there is so much pressure and heaviness on you. और जब तक आप अपने खुद के संसाधनों के ऊपर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके ऊपर बहुत दबाव या ऐसा मानो कुछ भारी चीज है आपके A ऊपर। bigger bill comes, there's more pressure on your head, बड़ा बिल आता है तो और ज्यादा दबाव आता है आपके सिर पे, more heaviness on your head, और भारीपन लगता है आपके सिर पर, and you feel like what we're going to do. और आपको लगता है कि हम क्या करेंगे अभी। Well, we must learn to live by our Father's resources. हमें सीखना है कि हम अपने पिता के संसाधनों के अनुसार कैसे जिए, Otherwise, the heaviness will increase. नहीं तो वो भारीपन जो है वो बढ़ते रहेगा। And I'm trying to help you. और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। You will feel like you are feeling dizzy. आपको ऐसा लगा कि आपको चक्कर आ रहा है। Have you ever felt like when the expenses are high, you feel a little dizzy? क्या ऐसा हुआ है बोलिए, कभी कि खर्चे जब बहुत बढ़ जाते हैं आपको चक्कर आ जाता है? सच बोलिए, ठीक है? When the expenses are high, जब खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं you feel like what I'm going to do? आपको लगता है मैं क्या करूंगा अभी। Already we have little, पहले से हमारे पास थोड़ा है, and so the pressure is on your head. तो दबाव है आपके सिर पर, The heaviness is on your head, वो भारीपन है आपके सिर and पर, you will do everything possible to keep it with you. और आप हर एक चीज जो संभव है आप करेंगे उसको अपने साथ रखने में। You can be so fearful that you can actually stop giving because you have so much expenses. आप इतना भय से भर सकते हैं कि आप देना बंद कर सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर खर्चे बहुत ज्यादा है। And the reason that is a problem is because you are living by your own resources instead of living by the Father's और resources. ये समस्या इसलिए है क्योंकि आप अपने खुद के संसाधनों के अनुसार जी रहे, अपने पिता के संसाधनों के अनुसार जीने के बजाय। We must understand the Father's heart. हमें पिता का हृदय समझना है। Let's go back to the book of Genesis, हम उत्पत्ति की किताब में वापस जाएंगे because he never changes. क्योंकि वो कभी बदलता नहीं। He plants a garden, वो वाटिका लगाता है, he makes the tree to grow, वो वृक्षों को उगाता है, he makes the fruits to come, वो फलों को लेकर आता है, and then he puts Adam there. और फिर जाकर वो आदम को वहां So रखता he है। never wanted Adam to worry about provision. तो वो नहीं चाहता था कि आदम कभी भी प्रावधान के बारे में चिंता करे। The more we drift away, जितना हम दूर चले जाएंगे it's a problem. उतना वो समस्या है। Okay, so let's see the first point. आइए हम पहला मुद्दा देखेंगे। It says the Father has unlimited provision for every one of his children. पिता के प्रत्येक संतान के लिए असीमित प्रावधान है। That means all of us. इसका अर्थ है हम सभी के लिए, Not just one of us, all of us. हम में से एक के लिए नहीं, हम सभी के लिए। What God did for Adam, that's his intention and he never changes. जो परमेश्वर ने आदम के साथ किया वही उसके इरादे हैं और वो कभी बदलते नहीं। He planted the garden. उसने वाटिका को लगाया, He made the tree to grow. उसने पेड़ों को उगाया, He gave the fruit. उसने फल दिए। So that's his intention for all of us. तो ये इसके इरादे हैं हम सभी के साथ। The Father has unlimited provision for every one of his children. पिता के प्रत्येक संतान के लिए असीमित प्रावधान है। Now you can choose and say, I don't want his resources, I will live by my own. आप निर्णय कर सकते हैं, आप एक चुन सकते हैं कि मुझे पिता के संसाधनों के अनुसार नहीं जीना, मुझे अपने खुद के संसाधनों के अनुसार जीना है। That is going to make your head heavy. ये बात आपके सिर को भारी बना देगी। That is going to make you dizzy. ये बात आपको चक्कर दिलाएगी। So it's better to live by our Father's resources than by our own. तो ये बेहतर है कि हम पिता के संसाधनों के ऊपर जिए अपने खुद के संसाधनों के बजाय। And I'm teaching you how to do it. और मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे करना है। Psalms 145:14. भजन संहिता 145 का 14। The Lord upholds all that fall. यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। How beautiful is our Lord. The Lord upholds
all that fall, he will uphold them. कितना सुंदर है हमारा प्रभु, यहोवा सब गिरती हुई चीजों को संभालता है। You remember when Peter began to sink, he cried out and the Lord helped him stand again. क्या आप जानते हैं जब पतरस डूब रहा था तब प्रभु ने उसको खड़ा किया फिर से। The Lord upholds all that fall and raises up all those are bowed down. यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता He है। loves to make us stand upright. वो उसे अच्छा लगता है जब वो हमको सीधा खड़ा करता है। Amen. आमीन। So 145:15. सो 145 का 15। इसको देखिए। The eyes of all wait upon thee. सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है। You give them food in due season. और तू उनको आहार समय पर देता है। Just say, let's say that God stops the rain. मानिए कहेंगे कि परमेश्वर ने बारिश बंद कर दिया। You know, this world will be in so much trouble. क्या आप जानते हैं पूरी धरती कितनी समस्या में आ जाएगी? He says he gives them their food in due season because he has so much provision. वो कहता है कि तू उनको आहार सही समय पर देता है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा प्रावधान है। The eyes of all wait upon you, for you give them their food in due season. सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है क्योंकि तू उनको आहार समय पर देता है। Including us, his children. हमें भी उसके बच्चों को मिलकर भी। Verse 16. वचन 16। You open your hand. You open your hand and you satisfy the desire of every living thing. तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। It talks about the Father's unlimited provision for all of his creation. ये पिता की उसकी असीमित प्रावधान के बारे में बात करता है जो हर एक सृष्टि की गई प्राणी के लिए है। He can't just create us and then tell, go take care of yourself. He can't do that. वो हमको बनाकर हमें ये नहीं कह सकता कि अपनी देखभाल तुम खुद कर लो, वो ऐसा नहीं कर सकता। He opens his hand and satisfies the desire of every living thing. वो अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता He है। gives everyone their food in due season. वो हर एक जानवर को, हर एक व्यक्ति को वो सही समय पर आहार देता है। There is daily provision. एक दैनिक प्रावधान है, There is weekly provision. एक सप्ताह का प्रावधान है, There is monthly provision. There is yearly provision. एक मासिक प्रावधान है और एक साल का प्रावधान Your है। Father has planned it all. आपके पिता ने सब कुछ की योजना कर Now, रखी है। if you trust Him, अगर आप अभी उस पर भरोसा रखेंगे you will get that provision. आपको प्रावधान मिलेगा। But if you don't trust Him, अगर आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे then you will not have your provision. तो आपको आपका प्रावधान नहीं मिलेगा। Okay, now first point, today's one way of partaking the provision is being Father centered unlocks the Father's provision. एक तरीका उस प्रावधान में सहभागी होने का यह है कि जब आप पिता केंद्रित होते हैं तब पिता का प्रावधान आपके जीवन में प्रकट होता है। That means whatever you're doing, you have to be Father centered. इसका अर्थ है जो कुछ भी आप कर रहे हैं आपको पिता केंद्रित होना है। Whether you're doing ministry, you have to be Father centered. अगर आप सेवकाई कर रहे हैं तो आपको पिता केंद्रित होना है। Whether you're working in a corporate world, you have to be Father centered. अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो आपको पिता केंद्रित होना है। Whether you are working in whether you're doing business, you have to be Father centered. अगर आप व्यवसाय भी कर रहे हैं तो आपको पिता केंद्रित होना है। So no matter where you are or what you are doing, even if you're studying, you must be Father centered. Only then you can have the Father's provision. भले आप कुछ भी कर रहे हो, आप कहीं भी हो या आप पढ़ाई भी क्यों ना कर रहे हो, आपको पिता केंद्रित होना है। उसके द्वारा ही आपको पिता का प्रावधान मिलेगा। We must make our life about Him. हमें अपना जीवन उसके बारे में बनाना है। Because these provisions that the Father has, it's huge. क्योंकि ये प्रावधान जो पिता के पास है ये बहुत बड़े हैं। Can you imagine His capacity, the ability to feed all creation? That's His capacity. उसकी क्षमता को देखिए कि वो सारे जीव जंतु जानवर सबको खिला सकता है। He opens His hand and feeds the
entire earth. That's his capacity. वो अपनी मुट्ठी खोलता है और पूरी पृथ्वी को खिलाता है, ये उसकी क्षमता है। And those things only happen for us if we become father centered. और ये चीजें हमारे लिए तभी होंगी जब हम पिता केंद्रित बनेंगे। That means the reason you are doing whatever you're doing, you must do it for God. तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका कारण है पिता। You must do it for God. आपको पिता परमेश्वर के लिए करना है। Your money is for God. आपका पैसा परमेश्वर के लिए Your है। time is for God. आपका समय परमेश्वर के लिए Your है। body is for आपका God. शरीर समय परमेश्वर के लिए है। Your energy is for God. आपकी ऊर्जा परमेश्वर के लिए है। Whatever you're doing it for God. अब जो कुछ भी कर रहे हैं आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, Just like Jesus. यीशु मसीह की तरह। Unless we become father centered, we cannot have his provision. जब तक हम पिता केंद्रित नहीं होते तब तक हमें वो प्रावधान नहीं मिलेगा। He doesn't sponsor selfish children. वो स्वार्थी बच्चों को प्रावधान या उनका प्रयोजन नहीं करता। That's why the Bible says, even if there is a child who owns everything, but because his mindset is not ready, he can enjoy nothing. ये मानो ऐसा है कि एक बच्चा जिसके पास सब कुछ है, जिसका सब कुछ है, क्योंकि उसका मानसिकता तैयार नहीं है तो वो कुछ चीजों का लाभ नहीं उठा सकता। So how do I unlock that provision? तो मैं वो प्रावधान को कैसे अपने जीवन में प्रकट करने How लाऊं? do I enjoy, not just living by myself, because that is very tiring, it will make you sick. और अपने ऊपर जीना नहीं, क्योंकि वो बहुत थकाने वाला जीवन है और आपको बीमार बना देगा। How do I live by my daddy's resources? मैं अपने पिता के संसाधनों के अनुसार कैसा जीऊं? How do I learn to live by my father's resources, मैं- just like Jesus? मैं यीशु मसीह की तरह अपने पिता के संसाधनों के ऊपर जीने का कैसे सीखूं? Otherwise, Jesus, his entire life would be pursuing provision, and he didn't do it. वरना यीशु मसीह पूरा जीवन भर प्रावधान के पीछे भागता, पर उसने ये नहीं किया। So, one of the major keys is being father centered. तो एक मुख्य कुंजी है पिता केंद्रित बनना। Many are self centered, बहुत सारे स्वयं केंद्रित है, many are money centered. बहुत सारे लोग पैसा केंद्रित है, But unless we become father centered, father's provision cannot be unlocked. पर जब तक हम पिता केंद्रित नहीं होते तब तक पिता का वो प्रावधान हमारे लिए नहीं खुल सकता। So the question comes, why are you doing what you're doing? What's the purpose? तो सवाल ये उठता है, आप जो कर रहे हैं आप वो क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? Because your answer to that question will either lock or unlock the father's provision. क्योंकि जो आपका उत्तर रहेगा उस प्रश्न के लिए वो आपके जीवन पिता के प्रावधान को खोलेगा वरना बंद कर देगा। Matthew 6:24. मत्ती 6:24। Your time, 24 hours you have, your time is actually for God. आपके पास 24 घंटे मिलते हैं आपको, वो आपका समय परमेश्वर के लिए है। Everybody has energy. हम सबके पास ऊर्जा है, Your energy is for God. आपकी ऊर्जा जो है वो परमेश्वर के लिए है। Everybody has little money here and there. हम सभी के पास थोड़ा बहुत पैसा है यहाँ वहाँ। All your money belongs to God. आप सबका पैसा, जो भी पैसा आपके पास वो सब परमेश्वर का है। Some of us are working here and there. हम में से कोई यहाँ वहाँ काम कर रहे हैं, All of that belongs to God. वो सब परमेश्वर का है। All our jobs, all our ministries, all our businesses, everything belongs to God. हमारी सारी नौकरियां, व्यवसाय, सेवकाइयां सब परमेश्वर की है। And unless we become father centered, the provision cannot come. और जब तक हम पिता केंद्रित नहीं बनते तब तक वो प्रावधान नहीं आएगा। So Matthew 6:24 says, look at this, we're going to read something. No man can serve two masters. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। How true. कितना सत्य है ये। That means if you're working, you are serving somebody. अगर आप काम कर रहे हैं तो आप किसी की सेवा कर रहे हैं। If you're doing ministry, you're serving somebody. अगर आप सेवकाई कर रहे हैं तो आप किसी की सेवा कर रहे Or हैं। whatever you're doing, wherever it is, you are serving somebody. आप जहाँ कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हैं आप किसी ना किसी को तो सेवा कर रहे हो। No man can serve two masters. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। Either he will hate the one, love the other, be loyal to one and despise the other. You cannot serve both God and money. क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा और एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। Either we trust God for provision or we pursue provision. Choice is ours.
एक बात है, नहीं तो हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं हमारे प्रावधान के लिए, नहीं तो हम प्रावधान के ही पीछे भाग सकते हैं। You know, when you become father centered, so many opportunities will come to you. जब आप पिता केंद्रित बनते हैं, आपकी और कितने सारे मौके आएंगे। When you become father centered, promotions will begin to happen. जब आप पिता केंद्रित बनते हैं तो पदोन्नतियां होती है, Doors will begin to open. दरवाजे खुलने लगते हैं, Things will begin to happen. चीजें होने लगती है। So no man can serve two masters. You cannot serve both God and mammon or money. कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। It's a very personal question. ये बहुत व्यक्तिगत सवाल है, Only you can answer it between you and God. सिर्फ आपके और परमेश्वर के बीच में है। Whatever you're doing, अब जो कुछ कर रहे हैं आप, whom are you serving? आप किसकी सेवा कर रहे हैं? Why are you doing what you are doing? आप जो कर रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं? Why are you doing it? आप वो क्यों कर रहे हैं? Either money is the reason or God is the reason. एक तो पैसा कारण है, नहीं तो परमेश्वर कारण है। If God is the reason, then if money is the reason, then God is not the reason. अगर पैसा वो कारण है तो परमेश्वर वो कारण नहीं। Somebody said, नहीं, दोनों. He said, you cannot serve two masters together. उसने कहा कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। He will hate the one, love the other. वो एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा। He'll be loyal to the one, despise the other. और वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। So we must answer, why are you doing what you're doing? तो हमें उसका उत्तर देना है कि हम जो कर रहे हैं हम वो क्यों कर रहे हैं। If we serve God, अगर हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, He will enrich you with so much provision. वो आपको बहुत सारे प्रावधानों से भर देगा। He will give you opportunities. वो आपको अवसर देगा, He will open doors for वो you. आपके दरवाजों को खोलेगा, Job will come. नौकरी आएंगी, Clients will come. ग्राहक आएंगे, Customers will come. आपके जो कस्टमर है वो आएंगे, Manager's eye will come on you. जो आपके मैनेजर की आंखें आपके ऊपर But if आएंगी। you don't care about God, पर अगर आप परमेश्वर की परवाह नहीं and करते you हैं only are living for your own stomach, और आप सिर्फ अपने पेट के लिए वहां काम कर रहे हैं, your life will have lot of struggles. आपके जीवन में बहुत सारे संघर्ष होंगे। Because you're trying to live by your little provision. क्योंकि आपका जो थोड़ा बहुत छोटा प्रावधान है, आप उसके अनुसार जी रहे हैं, And that's not our life. और वो हमारा जीवन नहीं है। So, look at this again. You cannot serve both God and money. आप परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। So we must decide whom we are serving. तो हमें ये बात को चुनना है, निर्णय करना है कि हम किसकी सेवा कर रहे Many हैं। people believe, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, ये उनका विश्वास है, in order to have provision, I must go after provision. मुझे अगर प्रावधान चाहिए तो मुझे प्रावधान के पीछे भागना पड़ेगा। YouTube देखने से यही होता है. They say, if you want provision, then you have to go after it. अगर आपको प्रावधान चाहिए तो आपको उसके पीछे भागना है। Somebody says, why are you going after provision? कोई कहेगा आप प्रावधान के पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि मुझे प्रावधान चाहिए. Makes a lot of sense. हाँ, ये बहुत मतलब बनाता है बातों का। Why do you make your life about provision? Because I want provision. आप अपना जीवन प्रावधान के बारे में क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मुझे प्रावधान चाहिए। Because if it is about provision, then it's not about God. क्योंकि अगर ये प्रावधान के बारे में है तो परमेश्वर के बारे में नहीं। If it is about God, God is going to fill you with provision. अगर ये परमेश्वर के बारे में है तो परमेश्वर को प्रबंध से भर देगा। See, that's what I'm trying to teach you. यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। Make it about God. परमेश्वर के बारे में चीजों को बनाइए। Whether you're working in the corporate world, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, or you're doing ministry, या आप सेवकाई कर रहे हैं, or you're doing business, या आप व्यवसाय कर रहे हैं, or you're studying in a college, या आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, make it about God. पर सब चीजें परमेश्वर के बारे में बनाई है। You don't have to go after provision to get it. It's a lie. आपको प्रावधान प्राप्त करने के लिए उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ये झूठ है। Our Father takes care of our provision. हमारा पिता हमारे प्रावधान की देखभाल करता है। You know, they say that the number of stars, it's still multiplying. लोग कहते हैं कि जो तारे हैं पूरे ब्रह्मांड में वो अभी भी बढ़ रहे हैं। And so God calls each star by its name. और परमेश्वर हर एक तारे को
उसके नाम से बुलाता है and there are unlimited stars. और असीमित तारे हैं। Can you see his capacity? क्या आप उसकी क्षमता को देख सकते हैं? No name comes twice. कोई भी नाम वो दोबारा नहीं लेता। That's his power. ये उसकी सामर्थ्य है। So he knows how to take care of you. तो वो जानता है कि आपकी देखभाल कैसे करनी है। He will provide for you. वो आपके लिए प्रावधान करेगा And we trust him. और हम उस पर भरोसा रखते हैं And we say, Lord, I make my life about you. और हम कहते हैं प्रभु मैं अपना जीवन आपके बारे में बनाता हूँ। I do this ministry for you. मैं ये सेवकाई आपके लिए करता हूँ। My job, I do it for you. मेरी नौकरी मैं आपके लिए करता हूँ। My education, I do it for you. मेरा शिक्षण जो है मैं आपके लिए करता हूँ। How beautiful your life will be. आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। If you have never tasted provision that comes by grace, अगर आपने उस प्रावधान को कभी नहीं चखा जो अनुग्रह से आता है, as for me, I live in that provision. मेरे लिए बोला जाए तो मैं उस प्रावधान में जीता हूँ। So I have nothing to boast about. This came by sweat. This came by sweat. I have nothing to show that came by sweat. But I have lot of things to show that came by grace. मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अपने घमंड से बोल सकता हूँ कि ये मैंने पसीना बहाकर कमाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो अनुग्रह से आई है। Our monthly provision is by grace. हमारा जो मासिक प्रबंध होता है वो अनुग्रह से होता है। Our daily provision is by grace. हमारा दैनिक प्रावधान वो अनुग्रह से होता है। We eat from the table of our Father. हम अपने पिता के मेज से खाते हैं। He has a lot of resources. और उसके पास बहुत सारे संसाधन हैं। So my point is, unless you become father-centered, तो मेरा मुद्दा है कि जब तक आप पिता केंद्रित नहीं बनते, father-centered, पिता केंद्रित बनना, father-centered. पिता केंद्रित बनना। If you study the life of Jesus, अगर आप यीशु मसीह के जीवन को सीखेंगे, because जैसा वह है वैसे हम हैं। Yes, so we must study him. He's our example. He's our role model. तो हमें उसका अध्ययन करना है, वो हमारा So उदाहरण when है। I study him, तो मैं उसको जब उसका अध्ययन करता हूँ, so many times he would talk about his dad. कितनी बार वो अपने पिता के बारे में बात करेगा। I and my father are one. मैं और मेरा पिता एक है। I live for my dad. मैं मेरे पिता के लिए जीता हूँ। I work because my dad works. मैं काम करता क्योंकि मेरा पिता काम करता है। My food is to do what my dad wants. मेरा खाना ये है कि मैं अपने पिता की भेजी हुई इच्छा करूँ। Now someone will say, well, that's for those who are in ministry. तो कोई कहेगा अब ये उनके लिए है जो सेवकाई करते हैं। No, every one of us, we are as Jesus is. नहीं, हम सब जैसा यीशु है वैसे हम भी है। Many in the world have struggled a lot financially. बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पर है जिन्होंने बहुत ज्यादा आर्थिक संघर्ष को देखा है। And the excuses they give. और जो कारण वो देते हैं, Market is down. कहते हैं मार्केट नीचे है, Jobs are not there. नौकरियां नहीं है, Inflation is up. महंगाई बढ़ गई है, Recession is there. मंदी है। All those things don't matter. ये सब चीजों से परवाह नहीं करता। What matters is because we didn't have the keys. फर्क किस बात से पड़ता है कि हमारे पास वो कुंजी नहीं है। Unless you make your life about your dad, you will always struggle. जब तक आप अपना जीवन अपने पिता के बारे में नहीं बनाएंगे तब तक आप संघर्ष करते रहेंगे। Life is not about a woman or a man. Life is about a dad. जीवन एक स्त्री या पुरुष के बारे में नहीं है, जीवन हमारे पिता के बारे में है। So try making your life about your dad. You will be amazed at the flood of provision that comes to you. आप अपने जीवन को पिता के बारे में बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो प्रावधान आपके ऊपर आएगा आप उस प्रावधान से चौंक जाएंगे। 24 hours you have. 24 घंटे हैं आपके पास, It belongs to your dad. वो आपके पिता के हैं। Use that 24 hours for his agenda, not for your selfish purpose. आपकी जो 24 घंटे हैं वो उसके योजना के लिए इस्तेमाल किए, अपने खुद के स्वार्थी चीजों के लिए नहीं यूज करें। किसी ने बोला, प्रभु संडे को 3 दिया आपको, संडे को 3 घंटा देता हूं, बाकी पूरा मेरा। ये कुंजी है आर्थिक संघर्ष का, ये स्टेटमेंट। प्रभु संडे 4 घंटा दिया आपको, बाकी सब मेरा। आपका संघर्ष श्योर है ब्रदर। You have 24 hours every day. It don't belong to you. आपके पास 24 घंटे हर दिन, वो आपकी नहीं है। We are not doing God any favor by coming to church. You know that, right? हम परमेश्वर पर कोई एहसान नहीं कर रहे कलीसिया से आकर, आप जानते हैं बात को। 24 hours it belongs to him. 24 घंटे उसके हैं। If you want to prosper by grace, not by struggle, sweat, toil, no. If you want to prosper by grace,
your 24 hours, it belongs to God. अगर आप चाहते हैं कि आप अनुग्रह के द्वारा समृद्ध हो, खून पसीना संघर्ष करके नहीं, पर अनुग्रह के द्वारा हो, तो उसके 24 घंटे जो है आपके, वो उसके हैं. This body, ये शरीर, it belongs to God. ये परमेश्वर का है. So when you know that it belongs to God, you take care of it. जब आप जानते हैं परमेश्वर का, तो आप उसकी देखभाल करते हैं. Your 24 hours, it belongs to God. So don't waste it. It belongs to somebody else. आपके 24 घंटे जो आपको मिलते हैं परमेश्वर के, तो उसे आप व्यय ना करें, आप किसी और के हैं. So when you become father centered, कुछ ताले खुल गए आपके लिए. जब आप पिता केंद्रित बनते हैं, तो कुछ ताले खुल जाते हैं आपके लिए. And so lot of provision will come. और बहुत सारा प्रावधान आएगा. It is beautiful to taste the provision that comes by grace. ये बहुत अच्छी बात है, उस अनुग्रह को उस समृद्धि को चखना जो अनुग्रह के द्वारा आती है. Okay, so you cannot serve both God and money. आप परमेश्वर और धन दोनों का सेवा नहीं कर सकते. 25. 25. Now Jesus is speaking. अभी यीशु मसीह बात कर रहे हैं. Who never pursued provision but always had provision. How amazing. जिसने कभी प्रावधान के पीछे भागा नहीं, पर उसके पास हमेशा प्रावधान था. कितना अद्भुत है ये. How interesting. He never pursued it but he enjoyed it. वो कभी प्रावधान के पीछे भागा नहीं, पर उसने आनंद हमेशा उठाया. Look at no one else. किसी और की ओर ना देखे, Look at him. सिर्फ यीशु को He देखिए. never pursued it, yet he never lacked it. उसने कभी प्रावधान का पीछा नहीं किया, फिर भी उससे कभी प्रावधान की कमी घटी नहीं हुई. He broke all the principles that so-called people teach today. जो आजकल के लोग जो सिद्धांत सिखाते हैं, उसने सारे सिद्धांतों को तोड़ दिया. Those who are of the earth, they speak like the earth. जो पृथ्वी के हो, पृथ्वी की बातों को बोलते हैं. They have principles of the earth and earthly people listen to it. और वो उनके सिद्धांत पृथ्वी के होते हैं और पृथ्वी के लोग उनके सुनते हैं. But we are from another place. पर हम अलग जगह से हैं. So Jesus said, take no thought for your life, what you shall eat, what you shall drink, what you shall put on. Is not life more than food and the body more than clothes? और यीशु ने कहा कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे. क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? See what he's doing? वो क्या कर रहा है? He is trying to take your mindset away from yourself. वो आपकी मानसिकता को, आपके मन को आपसे अलग लेकर, दूर लेकर जा What रहा है. shall I eat? मैं क्या खाऊंगा? मैं. What shall I eat? मैं क्या खाऊंगा? What shall I drink? मैं क्या पीऊंगा? What shall I wear? मैं क्या पहनूंगा? He said the reason you're struggling so much is because you're full of I. क्योंकि वो कहता है कि जिस कारण तुम इतना संघर्ष कर रहे हो, क्योंकि तुम पूरे मैं से भर गए हो. Is not life more than food? क्या जीवन खाने से बढ़कर नहीं? You know, while I was meditating on this verse, suddenly Dubai came into my heart. जब मैं इस वचन के बारे में मनन करता, दुबई मेरे मन में आया. Because we are praying for all the nations of the world. 3 months, more than 3, I believe 6 months. We are completing 6 months praying for the nations of the world. 6 महीना हो गया है और हम पूरे विश्व भर के जितने भी देश है उनके लिए प्रार्थना करते हैं. You know, they say that Dubai is tax free. वो कहते हैं कि जो दुबई है वहां पे कर नहीं लगता किसी बात को, And it is the safest place. और वो सबसे सुरक्षित जगह है जीने के लिए. So many people, they went there and they built their life in Dubai. और बहुत सारे लोग वहां गए और उन्होंने अपना जीवन दुबई में मनाया. Suddenly there was an attack in Dubai. अचानक अभी कुछ दिनों पहले दुबई पे एक हमला हुआ. All people are leaving that place. सब लोग वो जगह छोड़ रहे They're हैं. leaving their houses. अपने घरों को छोड़ रहे हैं, They're leaving banks. अपने खातों को छोड़ रहे They're हैं, leaving their money. उनके पैसों को छोड़ रहे They're हैं, leaving their cars. अपने गाड़ियों को छोड़ रहे हैं And they're coming back. और वापस आ रहे हैं. There's a rush in the airport. वहां पे पूरा एयरपोर्ट में पूरी भाग दौड़ है. You know, in these shakable times, it is very important to build your life on something that never shakes. ये ऐसे समयों पे जहाँ हर चीज हिलाई जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जीवन हम ऐसी चीज पे बनाए जो कभी हिलता नहीं. Which they built for years. सालों भर उन्होंने बनाया ये, They're leaving behind. अब सब पीछे छोड़ के जा रहे हैं. See, I told you, God will shake the systems. मैंने कहा आपसे कि परमेश्वर व्यवस्थाओं को हिलाएगा. It was the prophetic word. ये भविष्यवाणी का वचन था. And it's not just Middle East. It is going to happen in every nation. और ये सिर्फ दुबई या उसके इर्द गिर्द राज्यों में नहीं, ये पूरे विश्व भर में होगा. So all the people
they have built their own systems, it will be shaken. और जो लोगों ने अपनी खुद की प्रणालियां जो बनाई हैं वो सब कंपित की जाएगी. Because during these shaking times, you must build your life on something that never shakes, and it's the Word of God. क्योंकि ये समय में जहाँ पे हर एक चीज हिलाई जा रही है, इन समय में हमें अपना जीवन ऐसी चीज पे बनाना है जो कभी हिलता नहीं है, और वो है परमेश्वर का वचन. Amen. Amen. Okay, so he says, take no thought. Okay, 26, let's go to 26. 26. Behold the birds of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not much better than they? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है. क्या तुम उनके अधिक मूल्य नहीं रखते? He says, your Father feeds them. वो कहता है तुम्हारा पिता उनको खिलाता है. जो पक्षियों को खिलाता है हमें भी खिला सकता है कि नहीं? Yeah, he has provision. Your Father feeds them. तुम्हारा पिता उनको खिलाता है. He has allotment for you if you believe. उसके पास आपके लिए एक भाग है अगर आप विश्वास करेंगे तो. If you don't believe it, then you ignore all that and try to make something for yourself. अगर आप उस पे नजरअंदाज कर देंगे तो आप खुद के लिए कुछ बनाने का तो कोशिश करेंगे. And something like that happens in Dubai, you leave everything and run because life is more important than car, है कि नहीं? क्योंकि ऐसा कुछ होगा दुबई में कि आप सब छोड़कर जो आपने बना पीछे भाग जाएंगे, क्योंकि आपका जीवन आपकी गाड़ी से तो अच्छा मूल्य रखता है. Life is more important than house. अरे हम ही नहीं रहेंगे तो घर का क्या करेंगे? So they leave the house and they run. आपका जीवन आपके घर से मूल्यवान है, वो घर छोड़ के भाग जाते हैं. So what I'm saying is that we must build our life on the word. हम कहने का ये मतलब है कि हमें अपना जीवन परमेश्वर के वचन पर बनाना है. Our Father feeds them. हमारा पिता उन्हें खिलाता है. आपका जन्म होने से पहले आपके पूरे जीवन के लिए जो प्रावधान है वो तैयार है. It's all ready. सब तैयार है. I encourage you to believe me. मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप मुझ पर विश्वास करें. Your entire life provision before you came out of your mother's womb, it's all ready. आपका पूरा जीवन का प्रावधान आपकी माता की कोख से बाहर निकलने से पहले सब तैयार है. It's all ready. सब तैयार है. क्यों? So that your entire life you will not pursue provision but make your life about your dad. क्योंकि आपका पूरा जीवन आप प्रावधान के पीछे नहीं भागे और परमेश्वर के अपने पिता के पीछे भागे. Your heavenly Father feeds them. आपका स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है. It is right because you made the birds, you have to feed the birds. बना के आप छोड़ थोड़ी सकते हैं. ये सही है क्योंकि आपने बनाया है तो आपको खिलाना भी पड़ेगा. You can't just make us and leave us. आप हमको बनाकर ऐसे नहीं छोड़ सकते. He feeds the birds. वो पक्षियों को खिलाता है. Verse 27. 27. Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? Answer, no one. तुम में कौन है जो चिंता करके अपने अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? उत्तर है कोई भी नहीं. Verse 28. वचन Why do you take thought for clothes? Consider the lilies of the field, how they grow, they toil not, nor do they spin. और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली ससनों को पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना कताते हैं. नहीं काटते हैं. थोड़ा अलग भाषा हो गया. Verse 29. I say unto you that even Solomon in all his glory was not dressed like one of these. तो भी मैं तुमसे सच-सच कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था. He knows how to dress us. वो जानता है कि हमें कैसे कपड़े पहनाने हैं. How beautiful is our Father. हमारा पिता कितना सुंदर है. Verse 30. वचन 30. If God clothes, God feeds, God clothes. If God clothes the grass of the field. इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंके जाएगी उसे वस्त्र पहनाता है. परमेश्वर वस्त्र पहनाता है. परमेश्वर खिलाता है. God clothes. परमेश्वर वस्त्र पहनाता है. So obviously he has thought about your clothes. इसका अर्थ है कि तो उसने आपके कपड़ों के बारे में सोचा होगा. How beautiful. कितना सुंदर है ये. If God clothes the grass of the field, that grass, it's not even for a day. If God thinks about clothes for grass, for us so much more. जो घास जो एक दिन की भी नहीं है, परमेश्वर अगर उसको वस्त्र पहनाता है तो वो हमारे बारे में भी सोचता है.
I'm in ministry for God. मैं सेवकाई में परमेश्वर के लिए हूँ, I'm in the corporate world for God. मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में परमेश्वर के लिए हूँ, I'm doing business for God. मैं व्यवसाय परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। 99 people in your office, they're doing it for money. You're doing it for God. 99% लोग जो आपके ऑफिस में हैं वो पैसों के लिए कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए करिए। They're doing it to make a name for themselves. You're doing it for God. वो अपना नाम बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, आप अपने परमेश्वर के लिए करिए। He said, if God clothes the grass of the field, वो कहता है अगर परमेश्वर मैदान की घास को वस्त्र पहनाता है, इसको देखिए, shall he not much more clothe you? तो वो कहता है कि वो तुमको क्यों कर और अधिक ना पहनाएगा। Praise God. Okay, verse 31. वचन 31। Therefore take no thought, saying, what shall we, what shall we, what shall we? कि इसलिए तुम चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे। This is very interesting because here Jesus says, don't make your life about you. वो कह रहा है कि तुम अपना जीवन अपने बारे में मत बनाओ। You know, it's amazing where the entire world is telling you to focus on you, Jesus says, don't focus on you. जहां पे पूरा दुनिया आपको बता रही है कि आप पूरा ध्यान अपने आप पे रखिए, वहां यीशु आपको बोलता है कि अपना ध्यान खुद पे मत रखो, Don't think about you. अपने बारे में मत सोचो। So this is the secret of grace provision. Don't think about you. तो ये रहस्य है उस अनुग्रह के प्रावधान का कि आप खुद के बारे में ना सोचे। I found the secret. मैंने उस रहस्य को जान लिया। I said, my life is about you. It's not about me. मेरा जीवन आपके बारे में है, मेरे बारे में नहीं। I got the key. मुझे वो कुंजी मिल गई, I got it. मुझे मिल गई। That's why I told you, whether it's inflation, it doesn't matter. I will always prosper. इसलिए मैंने आपसे कहा भले ही महंगाई हो या ना हो, मैं हमेशा समृद्ध रहूंगा। It's not because of some special, it's because of the word. ये कुछ खास मैं कर रहा हूँ इसकी वजह से नहीं है, ये वचन की वजह से है। He says, don't say what we shall eat, drink, or we wear. तुम इसकी चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। Verse 32. वचन 32। इसको देखिए. For after all these things the Gentile seek, meaning orphans, those that don't have God. क्योंकि अन्य जाति अनाथ लोग जिनके पास परमेश्वर नहीं है, वह इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं। कौन खोज में रहता है? Those that don't have a God. वो जिनके पास परमेश्वर नहीं, Those that don't have a father. जिनके पास पिता नहीं। We have a father. हमारे पास पिता है। Those that don't have God, they are always consumed with themselves. जिनके पास परमेश्वर नहीं, वो पूरे समय अपने आप से भरे हुए होते हैं। For your heavenly Father knows. क्योंकि तुम्हारा पिता, स्वर्गीय पिता जानता है। I shouted when I read that. जब मैंने सुना मैं चिल्लाया। Said, wow, my Father knows. मेरा पिता जानता है। Your heavenly Father knows that you have need of all these things. और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। Some people, some believers, they say उसको नहीं पता है. They just pursue the provision so much as if God doesn't know, and that's a lie. और वो प्रावधान के पीछे इतना भागते हैं जैसे कि मानो परमेश्वर जानता ही नहीं इन चीजों के बारे में, और ये झूठ है। No, your heavenly Father knows. नहीं, आपका स्वर्गीय पिता जानता है। सब बोलिए, मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। आपके पिता को बोलिए, मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। मेरा स्वर्गीय पिता जानता है। He knows you have bill to pay. वो जानता है कि आपके पास बिल है भरने के लिए। Isn't it amazing that when he spoke about needs, he spoke about basic needs, food, water and shelter. Amazing. कितना अद्भुत बात है, जब उसने जरूरतों के बारे में कहा तो उसने हमारी जो अत्य आवश्यक जरूरत है उनके बारे में कहा, कपड़ा, रोटी और मकान। कुछ You watch movie? No. Food, drink and clothes. हाँ, खाना पीना और कपड़े। वो मकान लेके आ गया बीच में। That is okay. So your heavenly Father knows that you have need of all these things. तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। So if somebody knows that I need it,
so I don't make my life about it. तो अगर कोई जानता है कि मुझे इन चीजों की जरूरत है तो मैं अपना जीवन इन चीजों के बारे में नहीं बनाता। He's prepared everything. उसने हमारे लिए सब कुछ तैयार रखा है, It's all ready. वो सब तैयार है Because he's smart. क्योंकि वो होशियार है। He's not like, अरे बेबी क्या करेगा इसका? जैसे मच्छी बना लिया और फिर पूछा इसको डालेंगे किधर? पक्षी बना दिया, उड़ेंगे कहाँ पे? शेर बना दिया, कहाँ डालेंगे इसको? It's not like that. ऐसा नहीं है, He is well planned. वो बहुत अच्छे से योजना करता है। Before, now look at this. आदम एदन की वाटिका बनाने से पहले, आदम का फल खाने से पहले, पृथ्वी के नींव से पहले मेमने को वध कर देगा। इतना शानदार है आपका पिता। एदन की वाटिका बनाने से पहले, आदम को बनाने से पहले, गलती होने से पहले, पृथ्वी के नींव को डालने से पहले मेमने को वध कर दिया। He is well planned. He knows. He is well planned. He is way ahead of other people. Nothing is a surprise for him. और वो लोगों के कई अधिक आगे की सोचता है और कुछ भी उसे चौंकाता नहीं। Amen. You know, Haman was coming to destroy the Jews. जो हमान है वो यहूदियों को खत्म करने के लिए आ रहा था। You know what God did? आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया? There was a beautiful girl called Esther. एक बहुत सुंदर स्त्री थी जिसका नाम था एस्तर, And he made Esther come near the king. और उसने एस्तर को राजा के नजदीक लेकर आया। And the king saw Esther. और जब राजा ने एस्तर को देखा, And the king said, she'll be my wife. और राजा ने कहा कि ये मेरी पत्नी होगी। So Haman was about to destroy the Jews. God made a Jew the king's wife. That's God. जब हमान जो था वो परमेश्वर के लोगों को मारने पर था, तो परमेश्वर ने एस्तर को जो एक यहूदी थी उसे राजा की बीवी बना दी। That's how brilliant God is. और इतना शानदार हमारा परमेश्वर है। God is not negligent. परमेश्वर ऐसा नहीं कि उसको जो जानता नहीं चीजें। You know, I want to encourage you. Everything is ready. सब कुछ तैयार है। Even Joseph of Arimathea. यूसुफ अरिमतिया का यूसुफ भी, Jesus died. No one talks about him. उसके पहले किसी ने उससे बात नहीं की, Because his part didn't come. क्योंकि उसका भाग पहले नहीं आया। When Jesus died, जब यीशु मसीह मरे, there is a need for a tomb. एक कब्र की जरूरत हुई। Joseph of Arimathea comes. यूसुफ अरिमतिया का यूसुफ था, When the time is right, and he gave his tomb for Jesus. और उसने अपनी कब्र यीशु के लिए दे दी। At the right time, provision is ready. सही समय पर प्रावधान तैयार है। वहां पर यीशु मसीह का जन्म हो रहा है, वहां पर पूर्व से राजा निकले हैं सोना लेके। सब कुछ everything is ready. सब कुछ तैयार है। And when Jesus is born, they come with their gold, they come with their myrrh, they come with their frankincense, and they're saying, see, we saw your star, we want to give you this gold. और जब यीशु मसीह का जन्म होता, वो सब जो था सोना चांदी सब लेकर आए, क्योंकि उन्होंने कहा हमने वो तारे को देखा और हम आपके लिए लेकर आए हैं। For your father knows. तुम्हारा पिता जानता है How loving. कितना प्रेमी है वो, how much he cares for us. वो हमारे बारे में कितनी परवाह करता है। He knows that you have need. वो जानता है कि तुम्हें सब चीजें चाहिए। Okay, verse 33. वचन 33, Therefore, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। See, he knows you need it. वो जानता है कि आपको इसकी जरूरत है। He knows that you need it. वो जानता है आपको इसकी जरूरत है। He has made a provision. उसने प्रावधान बना के रखा है। And he has hidden that provision in you being father centered. और उसने वो प्रावधान आप पिता केंद्रित होने में छुपा के रखा है। You know, when we get up and pray in the early morning for the nations of the world, why are we doing it? Because that's what the Father wants. हम सवेरे जल्दी उठकर हम सारे देशों के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि परमेश्वर पिता चाहता है। Because everything is not about money. क्योंकि हर एक चीज पैसों के बारे में नहीं है। It's about our dad. वो हमारे पिता के बारे And में so है। the moment you begin to use your time, your energy, you begin to give it to God, that provision now begins to be released to your life. और जब आप अपनी ऊर्जा, अपना समय, अपनी शक्ति परमेश्वर के लिए देते हो, पिता के लिए देते हो, तब जाकर सब प्रावधान है वो आपकी तरफ आने लगता है। Easy provision. आसानी से आने वाला प्रावधान, Not tough provision. कठिन प्रावधान नहीं, Easy provision. आसानी से आने वाला प्रावधान Already prepared for you. जो आपके लिए पहले से तैयार है। When you become father centered, जब आप पिता केंद्रित बनते हैं, not self centered, स्वयं केंद्रित नहीं, you say, Lord, everything I have, my breath, my
energy, my time, my resources, everything I have, it belongs to you. My life is you centered. और आप कहते हैं कि जो कुछ मेरे पास है, मेरी श्वास, मेरा समय, मेरी ऊर्जा, जो कुछ मेरे पास है वो सब आपका है. See, that's what he says. यही उसने कहा. He says all things will be added to you. ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी. All things will be, you don't have to go after it. It will be added to you. तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें मिल जाएंगी. So what's the key? तो कुंजी क्या है? My life is about you. मेरा जीवन आपके बारे में है. Not 4 hours on Sunday, 24 hours of every single day, it belongs to you. सिर्फ रविवार के 4 घंटे नहीं है, मेरे दिन के हर 24 घंटे, हर जितने भी समय है मेरे पास, वो सब आपके हैं. All of my money, it belongs to you. मेरा सारा पैसा आपका है. All of my energy, it belongs to you. मेरी सारी ऊर्जा आपकी है. My entire life is about you. मेरा पूरा जीवन आपके बारे में है. Okay, finally, आखिर में being self-centered is one of the biggest hindrances in receiving the Father's provision. स्वयं केंद्रित बनना पिता के प्रावधान को हासिल करने में सबसे बड़ी बाधा है. Hardly thinking about God. परमेश्वर के बारे में बहुत मुश्किल से सोचना. What will I eat? मैं क्या खाऊंगा? What will I drink? मैं क्या पीऊंगा? What will I wear? मैं क्या पहनूंगा? And God says, my provision don't come to you because you're too much me. और परमेश्वर कहता है कि मेरा प्रावधान तुम्हारी ओर नहीं है क्योंकि तुम बहुत मैं करते हो. He said, when a child of God is self-centered, जब परमेश्वर का संतान जो है वो स्वयं केंद्रित होता है, doesn't think about God, परमेश्वर के बारे में सोचता नहीं, doesn't think about God's agenda, परमेश्वर की योजना के बारे में सोचता नहीं, doesn't think about what God wants. ये नहीं सोचता कि परमेश्वर क्या चाहता है. So all of the provision, it gets blocked. तो सारा जो प्रावधान है वो रुक जाता है. No matter how hard you try, भले आप कितना भी प्रयास क्यों ना करें, it doesn't come. वो नहीं आता. Remember, lot of people tried to touch Jesus. It's only that lady with the issue of blood. When she touched, the healing power came. बहुत सारे लोग यीशु को छू रहे थे, उसके ऊपर लदे पड़े थे, पर जब सिर्फ एक ही स्त्री थी जो जिसका लहू बहने की बीमारी थी, वो जब उसने यीशु को छुआ तब जाके वो चंगाई का सामर्थ उसमें आजाद हुआ. Being self-centered is another word for being self-centered is अल्प विश्वासी, little faith. और स्वयं केंद्रित होने का एक दूसरा शब्द है अल्प विश्वासी होना, छोटा विश्वास के साथ होना. When you are अल्प विश्वासी, you don't care about God, you only care about yourself. जब आप अल्प विश्वासी होते हैं तो आप परमेश्वर के बारे में चिंता नहीं करते, आप खुद के बारे में चिंता करते हैं. This is what I want. ये मुझे चाहिए, This is my ambition. ये मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं, This is my dream. ये मेरा सपना है, This is my life. ये मेरा जीवन है. Not a great life. महान जीवन नहीं. Because where is God? परमेश्वर कहाँ है इसमें? God has to be in the center. आपके जीवन में परमेश्वर केंद्र में होना Your चाहिए. life is about God. आपका जीवन परमेश्वर के बारे में Your है. ambitions must be about आपकी God. महत्वाकांक्षाएं परमेश्वर के बारे में है. Every desire you have, all of your plans, God must be in the center. जो भी इच्छा है, जो भी आपकी योजनाएं हैं, उसमें परमेश्वर केंद्र में होना चाहिए. Because if God is not there, क्योंकि अगर परमेश्वर वहां नहीं, confusion is sure, गड़बड़ी है, frustration is sure, निराशा है, and eventually there will be depression. और आगे जाके आप डिप्रेशन में जाएंगे. So God must be in the center. तो परमेश्वर केंद्र में होना चाहिए. And once you become Father centered, और जब आप पिता केंद्रित बनते हैं, in every step, हर एक कदम में, in every decision, हर एक निर्णय में, every move, हर एक चलन में, about your time, आपके समय में, you don't say God ये तेरा ये मेरा, आप ही नहीं कहते प्रभु ये आपका ये मेरा है, ये तेरा ये मेरा. No, it's all about God. It belongs to God completely. नहीं, सब का सब कुछ परमेश्वर का है. And when you become Father centered, और जब आप पिता केंद्रित बनते हैं, you are about to get some opportunities. आपको अभी कुछ अवसर मिलने वाले हैं. See, we think अगर हम पूरा परमेश्वर के बारे में सोचते रहे तो मेरे बारे में कौन सोचेगा? When we make our lives about the Father, जब हमारा जीवन हम परमेश्वर के बारे में बनाते हैं, He will give you opportunities. वो आपको अवसर देगा. He will bring the right people to you. वो सही लोगों को आपकी ओर लेकर आएगा. Joseph of Arimathea will come. अरिमतिया का यूसुफ आएगा. उसने टूम दिया, ये अरिमतिया आपको घर दे देगा. वो उस अरिमतिया ने कब्र दिया, ये अरिमतिया शायद सबको घर देगा. कोई अरिमतिया आपको गाड़ी दे देगा. Amen, amen. Amen. कोई अरिमतिया आएगा और कुछ और दे देगा आपको. Amen. Because you're saying
I'm not pursuing these things anymore. क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं इन सब चीजों के पीछे अभी नहीं भाग रहा। It was a tomb जहां पर अब तक किसी को रखा नहीं गया था. God made sure it should be fresh. और एक ऐसी कब्र थी जहाँ पे पहले किसी को रखा नहीं गया, परमेश्वर ने सुनिश्चित किया कि वो कब्र ताजा हो। कोई अरिमथी आएगा कहीं से? Amen. कोई अभी रास्ते पे अरिमथी है? Yeah, so don't make your life about it. तो आपका जीवन उसके बारे में ना बनाएं। Our life is about our Father. हमारा जीवन हमारे पिता के बारे में है। What's my assignment, Dad? मेरा कार्यभार क्या है पिता? Get up early, pray for the nations of the world. सुबह जल्दी उठो, सारे देशों के लिए प्रार्थना करो। So we do it. तो हम करते हैं। And so God talks to a lot of people and they will send the money. और परमेश्वर बहुत सारे लोगों से बात करता है, फिर लोग पैसे भेजते हैं। Your next assignment, like God told me, He said, your traveling ministry will start again. आपका अगला जो कार्यभार से परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुम्हारी यात्रा की सेवा का फिर शुरू होगी। And so as I do it, जैसे मैं करता हूँ, totally focused on the Father. पूरी तरह से उसके ऊपर केंद्र रखता हूँ। What do you want? आपको क्या चाहिए? Not what I want. मुझे क्या चाहिए ये नहीं, What do you want? आप क्या चाहते हैं? What do you want? आप क्या चाहते हैं? And if you are Father-centered, some provision is coming into your life. और अगर आप पिता केंद्रित है तो कुछ प्रबंध आपकी ओर आएगा। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you for what we have heard today. पिता हम धन्यवाद करते हैं जो कुछ आज हमने सुना। Help us be centered on you. हमारी मदद करें ताकि हम आपके ऊपर केंद्र लगाए रखें। You didn't die for us and rise again on the third day so we could be selfish. आप हमारे लिए मरे और तीसरे दिन इस नहीं उठे इस बात के लिए कि हम स्वार्थी रहे, That we would just think about ourselves. कि हम अपने बारे में ही सोचते रहे। I know, Lord, you have kept some wise men. हम जानते हैं पिता कि आपने कुछ बुद्धिमान व्यक्ति लोगों को रखा है। You have kept some Arimatheas. आपने कुछ अरिमतिया के यूसुफ रखे हैं। At their right seasons they will come. और वो अपने सही समय पर आएंगे। We will not struggle for any of these things. हम इन चीजों के लिए कभी संघर्ष नहीं करेंगे, For we are kings born in the household of our God. क्योंकि हम राजा है और हमारा जन्म हमारे परमेश्वर के घर में हुआ है। Help us live the life of Jesus Christ. हमारी मदद करे ताकि हम यीशु मसीह का जीवन जिए। Help us live the life of Jesus Christ. हमारी मदद करे ताकि हम यीशु मसीह का जीवन जिए। We give you all the glory हम सारी महिमा आपको देते in हैं Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen.